Greetings and Assalamu alaikum. I am Anmol Shehbaz, and today I'll be talking about the various philosophies of research and we'll try to understand them. What usually happens is कि जब भी किसी को कोई research करनी होती है तो सबसे पहले the main important step is to develop the philosophy. And a lot of students, a lot of researchers, they want to skip this step, this particular step, and they want to, or they feel that it's very difficult. या जो philosophy is just related to philosophers या उन्हीं का काम है और it's a very difficult concept जिसको वो comprehend नहीं कर सकते. So I've designed today's presentation in order to facilitate the process of designing the research for you, because coming or putting together the philosophy is the foremost step whenever you are thinking of doing a research. So today's presentation, it has a certain outline that we'll be following. First, we'll discuss that why we need to study philosophy, and then we'll study that, and then we'll talk about that why is there a need to study philosophy and research together, and what is meant by research philosophy, and why is it so integral when we talk about research philosophy. And then we are going to see जो सबसे आई थिंक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टक, या तो उनको समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि वो अपनी रिसर्च फिलोसफी को कैसे डेवलप करें, हाउ दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप देयर ओन रिसर्च फिलोसफी. सो उसके बाद वंस दे आर डन विद दैट, तो फिर देखें कि द रोल ऑफ ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी इन शेपिंग द फोर मेजर रिसर्च फिलोसफीज विच आर positivism, realism, interpretivism and pragmatism. So coming to the main important point, that whenever we talk about any research, it cannot be alienated from the concept of philosophy. Why? Because आप जब भी कोई research करते हो उसके basic दो assumptions होते हैं, दो ideas होते हैं, that how the world is perceived by individuals and how the individuals they are making or they're trying to understand the various phenomena that are working. For example, इसकी सबसे recent जो और related example understand करने के लिए जो है, that we are going through a pandemic and everyone has a different perception and they are perceiving the world in terms of its present nature and in the future differently. And जो कोविड-19 या जो पेंडेमिक का एक अपना फिनोमिनन है, उसको भी देखने के लिए लोगों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स हैं. सो दिस इज़ हाउ व्हेनेवर वी आर कंडक्टिंग एनी रिसर्च, इस इन दो चीज़ों के ऊपर द इंटायर रिसर्च और द इंटायर रिसर्च फिलोसफी इज बेस्ड. But the problem is that you cannot know that what or which way or how you can make sense of the world or which way is the best, because हर एक की interpretation different होती है. आप नहीं कह सकते मेरी interpretation आपसे ज़्यादा अच्छी है या आपकी मुझसे ज़्यादा अच्छी है. So इसी वजह से थोड़ा research philosophy को understand करने में या उसकी sense बनाने में थोड़ा problem होता है. But I'll try my best कि I can facilitate the process for you. Now coming to the most important point, that what is research philosophy? So Saunders basically describes research philosophy as the development of knowledge and nature of knowledge. Two important points, nature and development in regards to knowledge, यानी कि types, domains हो गई knowledge की, and then how वो develop हो रही हैं. और रिसर्च फिलोसफी इज़ बेसिकली जो होता है वो आपका एक बिलीफ होता है. वंस यू डिसाइड दैट आपका एक सर्टन बिलीफ है कि आप एक रिसर्च को इन बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होकर देखना चाहते हैं, आप उसमें डेटा इन डेप्थ कलेक्ट करना चाहते हैं, आप उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज़ research philosophy will basically provide you a path that you have to walk on so that you can gather, analyze and use the data that you have collected. And it is going to deal with the research problem and how the researcher views the problem. Now the most important point is that why is the need to study, or why is the need to develop the research philosophy. So there are three basic very important points that have been given, and once I'm sure that I'm going to go through them one by one, you will see that how integral they are when you are designing your research. और वही बात है कि अगर इनमें से किसी में flaw आ जाएगा, you will have a very confused and बहुत अनऑर्गेनाइज्ड आपकी रिसर्च होगी. सो द फर्स्ट थिंग, जब आपकी रिसर्च फिलोसफी डेवलप होती है, इट पेव्स वे कि वो आपका जो रिसर्च मेथड होता है उसको बहुत रिफाइन कर देता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टू दैट, एंड दिस विल हेल्प यू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन. जिस फिनोमिनन या जिस प्रॉब्लम को लेकर आप स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आंसर दैट इन अ बेटर मैनर. सेकेंडली, वंस यू नो दैट आपकी फ़िलासफ़ीज़ क्या हैं, you will have different type of methodologies in hand as well, because research philosophy directly affects
आपकी जो मेथडोलॉजी है जो आपने चूज़ करनी होती है. सो वंस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन वेरियस फिलोसफीज़, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या क्या मेथडोलॉजीज़ हैं और आपको क्या क्या अडॉप्ट करनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन हाउ यू व्यू द वर्ल्ड, और या आप किस तरह से अपनी रिसर्च को लेकर चलना चाहते हो. एंड दिस विल हेल्प you avoid inappropriate and unrelated work, and it will also save your time because you'll have a very clear picture of what you want. एंड लास्टली व्हाट विल हैपन इज़, जब आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च फिलोसफीज़ पता चलें और उनके बेनिफिट्स पता चलें और एडवांटेजेस पता चलें, सो इट विल हेल्प यू बी मोर क्रिएटिव एंड एक्सप्लोरेटरी once you are conducting your research and you're designing your research methodology. Because for example, अगर आपको सिर्फ एक ही मेथड पता है या दो मेथड पता है, तो आप सिर्फ या फिलोसफीज़ पता है, तो यू आर गोइंग टू प्ले अराउंड ओनली दोज फिलोसफीज़. बट वंस यू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल द फिलोसफीज़, यू हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ जिनको आप ऑन एंड ऑफ जिस तरह मर्जी आप उनको जो है ट्वीक करके अपनी एक बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च डिज़ाइन आप बना सकते हो. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द रिसर्च अनियन, जो आपको बताएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च फिलोसफी. If you see this research onion, and as the name suggests that we have it shaped and designed like an onion जिसमें several layers होती हैं, you can see, as I have marked as well, that philosophy is the outermost layer. So onion की जो outermost layer होती है, that's the protective layer, protects the inner parts, and that is which gives way to the inner layers. So this can, this is I think the most important thing that can, you can keep in mind, that without the philosophy आप आगे वाली कोई से भी जो steps हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जब अपनी रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे होते हो, वो आप नहीं, यू वोंट बी एबल टू डू. अगर आपकी फ़िलासफ़ी जो है वो बहुत शेकी है, या आपने डिज़ाइन नहीं ठीक तरह से किया हुआ, या आपकी अंडरस्टैंडिंग या ग्रिप नहीं है, या आपको आइडिया नहीं है दैट हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप नॉलेज, और हाउ यू आर गोइंग टू सी द नेचर ऑफ नॉलेज. ठीक है. एंड इफ़ यू सी दैट एज जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िलासफ़ी इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, तो हमारे पास 4 बेसिक philosophical approaches हैं जो कि रिसर्चर के पास अवेलेबल होती हैं, एंड दे कैन यूज़ दैम. दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर. और वो आपको हेल्प करती हैं कि आपने किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड हाउ यू कैन डिज़ाइन योर रिसर्च फर्दर ऑन, फिर अप्रोच, मेथडोलॉजिकल चॉइस एंड सो ऑन. नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको कैसे पता चले कि आपकी अपनी रिसर्च फिलोसफी क्या है. सो वेन एवर एज अ रिसर्चर आप जब रिसर्च कर रहे हो, तो यू आर डिवेलपिंग नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड डेफिनेटली. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम कंडक्टिंग रिसर्च इन एजुकेशनल फील्ड, सो आई एम डिवेलपिंग my knowledge in this particular field, and whenever we are conducting the research, so we tend to make a number of assumptions at each and every step, depending on our exposure, depending on our life experiences and values. Now what will happen is that whatever the assumptions जो आपने अपने माइंड में बनाई हैं, it will help you to, and it will shape that how आप अपना जो रिसर्च क्वेश्चन है आप उसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हो, आप कौन से मेथड्स यूज़ करोगे, और अपनी आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको इंटरप्रेट कैसे करोगे. ठीक है. एंड आपकी जितनी वेल थॉट आउट और कंसिस्टेंट होंगी assumptions, इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन अ वेरी क्रेडिबल रिसर्च फिलोसफी. जितनी आपकी जो एरिया से रिलेटेड अगर आपका नॉलेज है, या आपका रिसर्च क्वेश्चंस है, मेथडोलॉजी आपने अगर सही तरह से डिवाइस नहीं की, सो दैट विल डेफिनेटली नॉट रिजल्ट इन अ क्रेडिबल रिसर्च फिलोसफी. Now these are very important things that you need to keep in mind, because these 3 assumptions that we are going to discuss, they pave way to what and they are interrelated with all the research 4 research philosophies जो हम अभी discuss करेंगे. So first thing जो हम assumption करते हैं, that is about the ontological assumption, and this is based on realities encountered in research. और इसमें we have 2 types, objective reality and subjective reality. Now what happens is that whenever you have objective reality that is free from bias, that is free from personal feelings, but whenever you have a subjective reality, you have the feelings and emotions, interpretations of people involved. So दुनिया को या research को करने के लिए you have two, or to see the realities, you have 2 visions. You can either view it objectively, where there is no in-depth meaning, there are no interpretations or by people, या क्या वो मीनिंग दे रहे हैं चीज़ों को, आप सिर्फ उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में, हार्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में यू रिप्रेजेंट. और देन यू हैव सब्जेक्टिव, जिसमें यू टेक इनटू अकाउंट देयर पर्सनल फीलिंग्स एंड एवरीथिंग इन डिटेल.
उसके बाद वी हैव द एपिस्टेमोलॉजिकल assumptions. दिस इज़ वेयर योर रिसर्च फिलोसफीज कम इन, कि आप अपना किस तरह से डिज़ाइन करें, किन आइडियाज़ के ऊपर डिज़ाइन करें, क्या आपकी सोर्सेज होंगी, ह्यूमन नॉलेज क्या होगा डिज़ाइन करने का अपनी रिसर्च फिलोसफी. एंड देन वी हैव द लास्ट पॉइंट इज़ एक्सियोलॉजिकल assumptions, एंड दीज आर अबाउट द assumptions अबाउट द ह्यूमन वैल्यू. एंड इसमें पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि एज अ रिसर्चर उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, वो किस तरह से रोल प्ले कर रहा होगा व्हेन ही इज़ वर्किंग अंडर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ रिसर्च फ़िलासफ़ी, या डिफरेंट रिसर्च फ़िलासफ़ीज़ में उसका कैसा रोल हो सकता है. कहीं वो बहुत डिटैच्ड होगा, कहीं वो बहुत इन्वॉल्व होगा, कहीं वो इंडिपेंडेंट होगा, कहीं वो बहुत इंटरप्रिटेशंस को अफेक्ट कर रहा होगा, कहीं उसका बाइस भी आएगा. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट कम अंडर दिस. नाउ once we proceed on with assumptions and with the philosophies, you'll get a clearer picture कि हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं research philosophies में, and why इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है whenever you are developing a research philosophy. As we just discussed that whenever you are talking about your objective reality, so that means it's not going to be influenced by personal feelings, and subjective reality may it's definitely talking about the mind and belonging to this thinking of the subject rather than to the object. This example, the picture that I've put up here, इसमें आपको बहुत obvious नज़र आ रहा है that how the objective reality is that it is a tree, but तीनों लोगों की different subjective interpretations are based on whatever they are making, or they are making sense out of watching that tree. Now the important thing is that आपको कैसे पता चले that how you have to develop, आपको कैसे पता चले कि आपने अपनी रिसर्च फिलोसफी को कैसे डेवलप करना है. सो उसके लिए देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. और अगर आप इनको थॉरली इन पे ऊपर ग्रिप, इफ़ यू हैव अ ग्रिप, then that it will result in you developing a very active and thorough informed philosophical choice. The first thing is you need to start off by asking questions कि आपके रिसर्च बिलीव्स क्या है और एजम्पशंस क्या हैं. एजम्पशंस हमने अभी तीनों डिस्कस की कि आप सब्जेक्टिवली देखना चाहते हो, आप ऑब्जेक्टिवली देखना चाहते हो, आप किस तरह से अपने नॉलेज को आप उनको डेटा को गैदर करना चाहते हो, आप एज अ रिसर्चर आप क्या रोल प्ले करना चाहते हो, डू यू वांट टू बी टू इन्वॉल्व, लेस इन्वॉल्व. ये सारे क्वेश्चन आप पूछना शुरू करो एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स डाउन. एंड देन वंस यू आर डन विद दैट, आप अपने आप को फेमिलराइज करो सारी जो 4 मेजर रिसर्च फिलोसफीज़ हैं, सो दैट यू हैव अ क्लियरर पिक्चर एंड आइडिया कि आपने आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके बिलीव्स है, रिसर्च बिलीव्स और एजम्पशंस हैं, वो किस फिलोसफी से मैच कर रहे हैं. एंड दैट मीन्स दैट विल बी द मोस्ट परफेक्ट एंड फिट फिलोसफी फॉर यू टू अप्रोच. As you can see, I've put up a picture here जिसमें you can see कि आपकी जो रिसर्च फिलोसफी है, जो ये सारा इसका डेवलपमेंट है, ये प्रोसेस है, इट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोसेस जिसमें आपके बिलीव्स, असम्पशंस, रिसर्च फिलोसफीज और रिसर्च डिज़ाइन, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड. ठीक है, कोई इनमें से तीनों में से कोई सा भी जो प्रोसेस है उसको आप ठीक तरह नहीं करेंगे, बाकी दोनों इफेक्ट होंगे. एज द एरोज ऑल्सो इंडिकेट दैट दे आर ऑल इंटरलिंक्ड. ठीक है, सो that means that you need to have a thorough grip and understanding. Otherwise आपका, अगर for example let's say if you don't have a very thorough or well developed research philosophy, it's going to affect your beliefs, assumptions, and definitely your research design. That's the most integral part of your research, where you go out, collect data, interact with the sample selection होती है आपकी. So that is going to be greatly affected. Now coming to the 4 major research philosophies, an overview of all of them is that when we talk about positivism, that's the first research philosophy. It employs empirical methods. That means facts, figures, inki basis pe this is the kind of research, or this is the kind of approach that you take if you are in favor of philosophical approach of positivism. If you're doing it एज अ रिसर्चर, अगर आपने रियलिज्म को लेना चाहते हैं, जिसकी 2 टाइप्स हैं, क्रिटिकल एंड डायरेक्ट, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर. This indicates that the senses, the 5 senses that we have of taste, sight, seeing, smell, touch, whatever, so how they are going to show us the reality, and how they are going to direct us, that how we make sense of the world. Then interpretivism, that's in directly opposite to positivism, जिसमें we tend to understand people, we want to understand people, whereas positivism में we just want to understand the phenomenons in term of facts and figures. And then we have pragmatism, जिसमें the most important determinant जो होता है आपका research question होता है, and then आप उस research question की base पे
यू वांट टू डिवाइस आउट योर इंटायर रिसर्च, जिसमें आप एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना चाहते हो उस रिसर्च क्वेश्चन को या वो जो प्रॉब्लम आपने हाईलाइट की होती है. सो टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविज्म, एज वी डिस्कस कि वो एम्प्लॉय करता है एम्पेरिकल मेथड्स, and this is the method that makes use of quantitative analysis. Quantitative analysis में we all know that you use methods that are or that help you to quantify the values. ठीक है, quantities में आप ले आते हो, facts में, figures में आप ले आते हो, और आपकी एक बहुत formal explanatory theory बन जाती है, because you are putting human experiences, their interactions, different phenomenons in the form of numbers. तो आपकी जो explanatory theory उससे resulting निकलती है, that's very very formal. Then because this focuses on law like generalizations, और आपकी जो objective analysis होता है where you as a researcher are independent of the topic being studied. So it's mostly used by natural scientists. और लॉ लाइक जनरलाइजेशंस का मतलब है जैसे साइंटिफिक आपकी थेरीज होती हैं, लॉज होते हैं, दैट कैन बी जनरलाइज टू लार्जर सराउंडिंग्स. तो जो आप पॉजिटिविज्म के अंदर आप अपनी रिसर्च करते हो तो आप उनको जनरलाइज कर सकते हो, लार्जर पॉपुलेशन. नाउ दिस इज़ वेरी वेरी एक्सप्लेनेटरी टेबल, और जो है आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि पॉजिटिविज्म इन इट सेल्फ एक फ़िलासफ़िकल अप्रोच है, बट आपकी जो तीनों एजम्पशंस हैं वो कैसे काम करेंगी यहाँ पे, एंड आप कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हो फिर एज अ रिजल्टिंग अगर आप पॉजिटिविज्म के फ़िलासॉफिकल अप्रोच के स्कूल ऑफ थॉट को फेवर करते हो. सिंस वी नो दैट जो आपकी नेचर ऑफ रियलिटी है वो एक्सटर्नल होगी, इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव है. सो दिस विल रिजल्ट कि आपकी जो सारी नॉलेज है, जो आप अपना, जिससे आप अपनी सोर्स से आप अपना नॉलेज कलेक्ट करना चाहते हो, अपना डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, सो दैट विल ऑल बी साइंटिफिक. You will have observable and measurable facts, and you will have law like generalizations, or mostly as explained because it uses a lot of quantitative analysis, तो हमारे जो use of numbers बहुत होगा. अब एक्जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज रोल ऑफ रिसर्चर आपका क्या होगा कि ये आपकी एक वैल्यू फ्री रिसर्च होगी. एंड वैल्यू फ्री रिसर्च मीन्स दैट आपकी जो सब्जेक्टिव इन्वॉल्वमेंट है रिसर्चर की वो बिल्कुल ज़ीरो होगी. एज इट सेज एज वेल कि रिसर्चर जो है डिटैच और इंडिपेंडेंट है और उसका ऑब्जेक्टिव स्टांस होता है. अब वंस यू आर वर्किंग अंडर पॉजिटिविज्म तो आपका जो अप्रोच है वो डिडक्टिव होगी, वेयर यू आर गोइंग टू मूव फ्रॉम योर theory to your data. You are going to move from you'll have a theory, ठीक है, जो already developed है, that's already an established law. उसके बाद you'll move on to data and you'll have very highly structured studies, जो कि जिसमें flexibility बहुत कम होती है और आपके जो sample size होता है that's very large. एंड सिंस यू हैव स्ट्रक्चर्ड स्टडी तो आपका क्वान्टिटेटिव मेथड होगा एनालिसिस का, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू एनालाइज वाइड रेंज ऑफ डेटा. जैसे सैम्पल इन क्वान्टिटेटिव स्टडीज़ रेंजेस फ्रॉम वो हंड्रेड्स में चला जाता है, तो यू कैन ईजिली एनालाइज ऑल दैट बिकॉज स्टेटिस्टिकल एनालिसिस बहुत ईजिली उनको केटर कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज़ रियलिज्म, जिसमें आपका इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू साइंटिफिक इंक्वायरी बट इट फोकसेज ऑन हाउ सेंसेस they make use and of how they are going to show you the reality and the truth. और ये आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है ह्यूमन माइंड से, जो आपकी पर्टिकुलरली थिंकिंग है. सो दैट मीन्स जो आपकी 5 सेंसेस हैं दे आर बेसिकली what you are going to make sense of. And this view also states that जो आपके social processes हैं they are the forces of human and they are the forces behind human control and which affects our beliefs and behavior, which is very true as well. But the thing is that there are two types of realism, जो obviously a lot of research and everything was done, तो उसमें दे काउंटर दोनों जो थे टाइप्स ऑफ रियलिज्म आ गए. डायरेक्ट रियलिज्म स्टेट्स दैट जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमें डायरेक्टली हम उनसे एक्सपीरियंस करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड एक्यूरेटली. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम स्टैंडिंग नियर द हीटर and I feel really warm, so that is how I'm making sense of the reality. But critical realism जो है वो उसको negate करता है, and they say that we experience sensation, image of things in real world and not the things directly, and often our senses this tend to deceive us. जैसे optical illusions का बहुत ज़्यादा concept है. Sometimes whenever you are standing near the pool,
तो कोई चीज़ जो उसकी बेस पे होती है, स्विमिंग पूल जैसे है, तो उसकी बेस पे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है दैट इट मे सीम और इट मे अपेयर वेरी क्लोज टू यू देन इट रियली इज़. सो क्रिटिकल रियलिज्म इस चीज़ को फेवर करता है कि ज़रूरी नहीं है आपकी सेंसेस आपको जो दिखा रही हैं दैट इज़ गोइंग टू बी द रियलिटी. एज अ रिसर्चर अगर आप रियलिज्म को सपोर्ट करते हैं दैट डिपेंड्स आइदर यू आर टेकिंग डायरेक्ट और द अदर फॉर्म ऑफ रियलिज्म, तो उसमें ये होगा कि द नेचर ऑफ जो आपकी रियलिटी है वो होगी आपके पास स्ट्रैटिफाइड या लेयर्ड होगी. वाई? बिकॉज एक तो आपका एम्पेरिकल नॉलेज होगा, एक आपका एक्चुअल होगा और एक आपका रियल होगा. दैट मीन्स एम्पेरिकल दैट यू कांट दैट एंड दैट इज़ नॉट ऑफ आर इंटरेस्ट इन दिस रिसर्च. एक्चुअल मीन्स कि जो आपको फील हो रहा है, ठीक है, एंड द रियल इज़ विच इज़ एक्चुअली इर्रिस्पेक्टिव of how your senses are making, a meaning out of it. So this is what we are interested in knowing, and it is going to be external and independent, and structures जो होते हैं वो आपके objectively view होते हैं. अब acceptable knowledge इसमें क्या होता है? Facts again, and knowledge जो है आपका historically situated होता है. अब इसमें दे हैव द रोल ऑफ रिसर्चर इसके वो उसको कहते हैं दैट इट्स वैल्यू लेडन. इट मीन्स दैट जो पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश हुई होती हैं या बायस होता है जो भी, तो वो रिसर्चर उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड व्यूज़, कल्चर एक्सपीरियंसेस एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स. एंड इसमें रिसर्चर की सबसे ज़्यादा यही कोशिश होती है अगेन वर्किंग ऑन दी ऑब्जेक्टिव लाइन्स कि वो उसकी कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो ताकि उसका बायस कम से कम आए, एंड वो जो लोगों की इंटरप्रिटेशन है उनकी सेंसेस के थ्रू ही इज़ एबल टू मेक सेंस ऑफ दैट. अब इसमें जो आपके मेथड्स हैं दे आर यूजुअली वेरी इन डेप्थ, एंड जो आपके पास हिस्टोरिकली एनालिसिस होते हैं स्ट्रक्चर्स के, चीज़ों के, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. और बिकॉज सिंस वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ सेंसेस, तो इसमें आपके पास रेंज ऑफ मेथड्स जो डेटा टाइप्स को केटर करते हैं वो भी आप बहुत ज़्यादा वेरियस और बहुत वाइड रेंज में आप उनको ले सकते हो. द थर्ड इज़ इंटरप्रेटिविज्म, जो हमने पहले पे डिस्कस किया था दैट इट इज़ डायरेक्टली ऑपोजिट टू पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म बहुत एम्पेरिकल है और वो बहुत स्ट्रक्चर्ड है, वेयर एज दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. वाई? बिकॉज इट टेंड्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट एवरीडे हैपनिंग्स, लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स और जो लोग वैल्यू देते हैं चीज़ों को. सो बेसिकली दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड पीपल, एंड वॉट इज़ that they put a lot of emphasis on differences among people, which is actually a real phenomenon that none of the two individuals they are similar. तो वो उनको subjective उनकी जो reality है जो वो personally as an individual meaning देते हैं, they want to explore that. Now if you are working as an interpretivist philosophy के अंडर, तो आपकी obviously जो nature of reality है that is going to be subjective and it's going to be very complex, very rich. Why? Because जब हम objectively काम करते हैं तो you just put everything under facts, numbers and figures, but यहाँ पे everyone is going to have a very very different interpretation of a single topic that you are studying. एंड जो आपकी जो सारी आपका सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप स्टडी करते हो थ्रू योर कल्चर एंड लैंग्वेज, और आपकी जो मल्टीपल मीनिंग्स लोग देते हैं रियलिटीज़ और फीलिंग्स को, एंड देन यू हैव अ फ्लक्स ऑफ प्रोसेसेस, अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन. एंड जो इसमें एक्सेप्टेबल नॉलेज है जिससे आप अपना सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो आप यूज़ कर सकते हो वो आपके नैरेटिव्स हैं, लोगों की स्टोरीज़ हैं, उनकी परसेप्शन, इंटरप्रिटेशंस के वो किस तरह एक सर्टन फिनोमेना को स्टडी करते हैं. दिस इज़ एज अ रिसर्चर इट्स अ वैल्यू बाउंड रिसर्च. दैट मीन्स कि इसमें सब्जेक्टिव एनालिसिस रिसर्चर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और वो पर्सनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, और उसकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जिस तरह वो इंटरप्रेट कर रहा है, जो लोगों ने उसको अपनी परसेप्शंस बताई हैं, दैट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फिलोसॉफिकल स्कूल. और आपके जो सारे मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वो ऑब्वियसली इन डेप्थ होंगे, बट यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक होता है कि आपको बहुत स्मॉल सैम्पल्स लेने होते हैं, बिकॉज यू कांट इंटरव्यू और यू कांट सिट विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड टॉक टू देम फॉर आवर्स एंड आवर्स. तो इसीलिए इसकी जनरलाइजेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. एंड क्वालिटेटिव जो आपके मेथड्स होते हैं उनको आप इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. देन अगेन वो इंटरव्यूज़, इस तरह के प्रोटोकॉल्स आप यूज़ करते हैं सो दैट यू कैन गैदर in depth information about the topic that you are studying. Now pragmatism is the fourth and last philosophical school जो हम discuss करेंगे, and उसमें जो आपका research question है
उसी की इम्पोर्टेंस होती है. वाई? बिकॉज रिसर्च इस जो प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं, अप्रोच को, उनकी रिसर्च तब स्टार्ट होती है व्हेन दे इनकाउंटर अ प्रॉब्लम. अपनी सराउंडिंग्स में वो देखते हैं, दे ब्रिंग अप दैट प्रॉब्लम एंड दे वांट टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम सो इट कैन बी अवॉइडेड इन द फ्यूचर. और इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को इतना फोकस नहीं किया जाता है. लाइक दे डू नॉट टेक इन टू अकाउंट दोज आइडियाज़ जिनकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस और रियलिटीज़ होती हैं. दे वांट टू बी, दे आर मोर, उनकी जो नेचर है वो बहुत प्रैक्टिकल होती है. एंड इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रियलिटी दोनों को केटर कर सकते हैं. सो अ पर्सन वर्किंग फ्रॉम अ प्रैग्मेटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और दिस फिलोसफी, उसके पास जो नेचर है रियलिटी की, देन अगेन बिकॉज इट्स केटरिंग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रियलिटी, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, रिच होगी और एक्सटर्नल होगी. और आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस आएंगे लोगों के. वाई? बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू वांट टू कम अप विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम. अब आपके पास एक्सेप्टेबल नॉलेज कैसे होगा कि आपके पास इसमें आपकी सोर्सेज जो डेटा कलेक्शन की या नॉलेज की होंगी कि यू नीड टू नो आपकी जो प्रॉब्लम है उसके पास, उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए. एंड यू हैव टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम और प्रैक्टिसेस. एंड आप इस तरह की फ्यूचर प्रैक्टिसेस निकालें सो दैट दोज प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड. नाउ इट्स अ वैल्यू ड्रिवन रिसर्च. वाई वैल्यू ड्रिवन है? क्योंकि इसमें आपके सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड बिजनेस जो आपकी वैल्यूज़ हैं, दे आर ऑल टेकन इन टू अकाउंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम दैट द रिसर्चर इज़ ट्राइंग टू स्टडी. एंड ऑब्वियसली रिसर्च ही तब स्टार्ट होती है जब रिसर्चर को लगता है कि एक सर्टन प्रॉब्लम उसके अराउंड एग्जिस्ट कर रही है. एंड आपके जो मेथड्स हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो योर रिसर्च प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट. और उसके बाद आपके पास, सिंस अगेन हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रियलिटी को आप दोनों को स्टडी कर सकते हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मिक्स्ड, मल्टीपल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सारे एक्शन रिसर्च, इन सारे मेथड्स को आप एम्प्लॉय करके एक इस स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो है वो या इस फिलोसफी को जो फॉलो करेंगे वो यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली जो मेन फोकस है वो प्रोवाइड करना है सोल्यूशंस के लिए. I hope that whatever we discussed, whatever I told, will help you now further whenever you are trying to develop your own research idea. So it will definitely help you to understand, and it will help you to develop your own research philosophy in a better manner. Here I have attached a few links to different case studies that will help you to dig deeper for better understanding, and they have questions on research philosophy and their use in practical settings, and which you can see, and you can practice these questions so that you can even analyze, or you can assess yourself that after this listening to this presentation, that where you stand, या आपको कितनी समझ आ गई है रिसर्च फिलोसफीज़ की, और what are the areas जहाँ पे आपको और you need to work harder on that. These were the references that were and the books that were consulted when preparing the presentation, and I would like to now conclude my presentation by a very famous quote of Henry, who says that whenever in knowledge and philosophy we have to distinguish that the purpose of research should ever be fixed on making simple what is abstruse, not abstruse what is simple. I hope that was pretty much my aim of designing this presentation for you as well, and I hope that it helps you in some way. Thank you so much for being here.